آپ نے ہمیں یہ کہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے اتنے گنا اور دادی سے اتنے گنا اور نانی سے اتنے گنا محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ روزانہ ہزاروں ایسی عورتوں کو موت کیوں دیتا ہے جن کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ السلام علیکم۔ ایک اہم ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ہم شروع سے ہی علماء کرام سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات بالکل من گھڑت ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ذخیرہ احادیث میں موجود ہے یا نہیں۔ تو حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بریلوی مکتب فقہ کے ایک مولانا صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں جن کا نام ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، پتر وہ اللہ ہے۔ انہوں ایک بندہ ادھر بچہ رو کے کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کرو رب ناراض ہو گیا، میں پتر آج تو بات نہ کدی کہیں وہ بڑا کریم ہی جدے تو ناراض ہوئے ہوتا تے رہندا ہی کھ نہیں ہوں وہ اللہ ہے حضرت، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، وہ یہ اس کا کرم ہے تو چال پھر رہے ہیں نا۔ کیا نہیں کیا حضرت ہم نے، کیا رہ گیا کرنے والا جو ہم نے کرنا ہے حضرت، لیکن کیا وہ اللہ ہے حضرت۔ صرف پتر ہم پکارتے نہیں اس کو، اسی سارے نے کتے نہ کتے کنڈی لائی ہے، کوئی دودھ چ پانی پان ڈے ہے، کوئی کھوتے وڈ وڈ ویچن ڈے ہے، کوئی دالاں چ روڑے پان ڈے ہے، سارے نے کنڈی لا لی ہے، کوئی انہوں نہیں پکارتا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ جل شانہ بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ یار اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے تو پھر اس کی محبت کیا ہوگی؟ اگر ایک ماں کی محبت یہ ہے کہ اس نے نماز توڑ کے بچے کو سینے سے لگا لیا، تو پھر تصور کرو حضرت جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے اس کی محبت۔ ڈاکٹر سلیمان مصباحی کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب یہی سوال مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ طارق صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں اللہ مومنوں کو دوزخ میں کیوں ڈالے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو چاہے وہ جتنا بھی نافرمان ہو چھوڑتی نہیں ہے، نہ وہ کبھی یہ سوچ سکتی ہے کہ میں اس کو آگ میں جلاؤں، تو پھر اللہ قیامت کے دن مسلمانوں کو نافرمانی کی سزا کیوں دیں گے؟ یعنی گویا آپ کا سوال یہ ہے کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں اللہ ان کو جہنم کی آگ میں کیوں ڈالے گا، حالانکہ ماں تو ڈال نہیں سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندوں سے ماں کی نسبت 99 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ماں کی محبت سے تو 99 اور ایک روایت میں 100 گنا زیادہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اللہ جہنم کی آگ میں کیوں ڈالیں گے؟ دیکھیں یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کی ایک صفت کو تو جانتے ہیں، دوسری صفت کو نہیں جانتے۔ جہاں اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ ماں سے 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہاں اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس میں غیرت بھی ماں سے 100 گنا زیادہ ہے۔ دیکھیں اس کی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی کو اپنی بیوی سے بے انتہا محبت ہے، عام لوگوں کی نسبت 100 گنا زیادہ، وہ اس کا پورا خیال کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ اتنی جب محبت کر رہا ہے تو خدا نہ خواستہ اسے پتہ چلے کہ اس کے زوجہ کا کسی غیر مرد سے تعلق ہے، تو آپ بتائیں کہ اس کے طے سے کیا حالت ہوگی؟ وہ یہ کہے گا میں اتنی محبت کیا کرتا تھا اور تم نے میرے ساتھ ایسی بڑی خیانت کی ہے۔ تو اب وہ بیوی کا جا کے گلا دبا دے، تو گلا دبانے میں لوگ یہ کہیں کہ یار فلاں صاحب نے تو اپنی بیوی کا گلا نہیں دبایا تھا، اس حرکت پہ اس آدمی نے پتہ نہیں کیوں گلا دبا دیا۔ تو ہم یہی کہیں گے بھائی اس میں چونکہ محبت زیادہ تھی، اس میں غیرت بھی زیادہ ہے، تو اس نے یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جو ہے یہ میرے ساتھ خیانت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا، اور آپ نے فرمایا اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں، اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ محبت بہت زیادہ کرتے ہیں تو پھر اس میں غیرت بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر وہ انتقام بھی اپنے حساب سے لیتا ہے۔ تو ماں کی ہم چونکہ ایک صفت جانتے ہیں، صفت محبت، ماں میں وہ انتقام کی صفت نہیں ہوتی، کیونکہ یعنی ظاہر ہے اللہ کی اور مخلوق کی صفات کو تو کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ میں غیرت بھی بہت زیادہ ہے، اور جب کوئی بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کو غضب بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ تو پھر اللہ کا انتقام بھی اللہ ہی کے حساب سے ہے، جیسے اللہ کی محبت اللہ کے حساب سے ہوتی ہے تو اللہ کا انتقام بھی پھر اللہ ہی کے حساب سے ہوتا ہے۔ ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف بھی آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اب ہم اہل حدیث مکتب فقہ کے ایک عالم قاری خلیل الرحمان جن کا تعلق انڈیا سے ہے، ان کا موقف بھی جان لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیا واقعی اس طرح کی کوئی حدیث ہے؟ کیا صحابہ سے یہ ثابت ہے؟ جب ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی بات شریعت کے اندر نہیں ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا ہے۔ البتہ
इसी से मिलती जुलती बात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, सही बुखारी हदीस नंबर 5999, कि एक औरत जिसका बच्चा उससे बिछड़ गया था भागती हुई आई और लोगों के दरमियान अपने बच्चे को तलाश कर रही थी कि अचानक उसकी नज़र उसके अपने बच्चे पर पड़ी। उसने अपने बच्चे को उठाया और अपने सीने से लगाकर उसको दूध पिलाने लगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, बताओ क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? सहाबा ने कहा नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारा रब इस औरत से कहीं ज़्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है, रहम करने वाला है। ये हदीस तो पता ये चला कि इस हदीस में ऐसी कोई बात नहीं कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत माँ की मोहब्बत से कहीं ज़्यादा है। यानी दुनिया के अंदर मोहब्बत की मिसाल दी जाती है तो माँ का हवाला दिया जाता है कि माँ अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन जब बात अल्लाह की आए तो अल्लाह उस माँ से कहीं ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। और आप देखें कि सही बुखारी के अंदर ही हदीस नंबर 6000 प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए और उस 100 हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा इस दुनिया के अंदर भेजा। फिर आपने फरमाया कि उसी एक हिस्से का कमाल है कि तुम देखते हो कि मखलूक आपस में एक दूसरे पर रहम करते हैं, इंसान, जिन्नात, जानवर, चरिंद, परिंद सारे आपस में एक दूसरे पर रहम करते हैं, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उसी 1% का कमाल है, एक हिस्से का कमाल है। फिर आपने मिसाल भी दी कि उसी एक हिस्से का कमाल है कि जो घोड़ी होती है वो अपना सुम उठा कर रखती है, अपना पैर उठा कर रखती है ताकि उसका सुम, उसका पैर उसके अपने बच्चे पर न पड़ जाए और उसके बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। ये माँ की मोहब्बत है, जानवरों की मोहब्बत है, इंसानों की मोहब्बत है, भाई की, बहन की, बाप की, बेटे की, बीवी की, शौहर की, पूरी दुनिया की मोहब्बत उसी अल्लाह के 1% रहमत का कमाल है जो उसने दुनिया के अंदर भेजा है। और उसने 99% हिस्सा मोहब्बत का, प्यार का, रहमत का अपने पास बचा कर रखा है जो क़यामत के दिन वो अपने बंदों के दरमियान उससे फैलाएगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व रहमती वसिअत कुल्ल शै, कि मेरी रहमत ने हर चीज़ को घेर रखा है। मेरी रहमत ने हर चीज़ को घेर रखा है, हर चीज़ का इहाता कर रखा है, यानी अल्लाह की रहमत पूरी कायनात में फैली। तो हम और आपको ये जुमला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, बल्कि अल्लाह पूरी कायनात की माओं से ज़्यादा मोहब्बत। तो अहले हदीस आलिम कारी खलीलुर्रहमान का मौक़िफ़ भी आपने जान लिया है। अब एक और अहले हदीस आलिम जिनका नाम कारी सुहेब बिन हमदी साहिब है, उनका मौक़िफ़ भी जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बनी हुई बात को कभी ना सोचा करो। जो लोग वैसे ही कह देते हैं कि अल्लाह तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, नहीं, 70 खरब माएँ भी हो जाएं तो अल्लाह के प्यार को नहीं पहुंच सकते। ये तो अल्लाह ज़ुल जलाल की रहमत की तौहीन है कि आप 70 पे उसको बंद कर दे। अल्लाह ज़ुल जलाल ने तो 100 रहमतें पैदा की। खलक़ल्लाहु मिअत रहमा, एक रहमत दुनिया में भेजी, 99 रहमतें अल्लाह ने अपने पास छुपा के रखी हैं। पूरी कायनात की मोहब्बत, हत्तल वहुश वत्तुयूर बअदुहा अला बअद, हैवान, इंसान, जानवर, परिंदे सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की एक रहमत की मरहून मिन्नत है। और फिर भी कहते हैं लोग बेचारे भूले हुए कि 70 माओ जितना, 70 खरब माएँ भी हों तो उतना प्यार नहीं दे सकती जितना मेरा मालिक अपने प्यारे बंदों से प्यार। कारी सुहेब मीर मुहम्मदी साहब का मौक़िफ़ आप तक पहुंच चुका है। अब चलते हैं जावेद अहमद कामदी साहब की वीडियो की तरफ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। फहमी है 70 माओं से ऐसी कोई बात बयानी नहीं हुई सिरे से, और माँ की मोहब्बत से तशबीह देना भी बिल्कुल गलत है। माँ की मोहब्बत तो अंधी मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला की मोहब्बत अकली है। अल्लाह ताला की मोहब्बत अदल व इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। तो इस तरह की तमसीलात के ज़रिए से अल्लाह ताला को समझना ही बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला ने कहाँ बयान किया है कि मैं सरासर मोहब्बत हूँ। वो काहिर भी है, वो जब्बार भी है, वो मुतकब्बिर भी है, वो ज़ू इंतकाम भी है, वो अदल व इंसाफ भी बर्पा करेगा। ये सारी सिफ़ात अल्लाह ताला ने बयान की हैं। तो अपनी तरफ से ये तसव्वुरात कायम करके इनका इतलाक़ अल्लाह ताला पर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला जैसा है वो उसने अपने पैगम्बरों के ज़रिए से बता दिया, उसको वैसा ही मानना है। जावेद कामदी साहब का मौक़िफ़ भी आपने जान लिया है। अब चलते हैं मौलाना इसहाक मदनी साहब की तरफ कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। पहला पहचानो कि मालिक है कौन, कितना दा जब ਉਹਦੇ पहचान की गलती होगी, किन्ने बेशुमार लोगों को बेवकूफ बना दिया कि अल्लाह हुर रही है, जिन्हें मर्जी गुनाह करते रहो, उन्हें कानून सजा देनी। जो मां ना ज्यादा प्यार करता, मां भला के सर जी यह गल्लां कर करके कुरान से सारे ते कलम फेर दे। कुरान पढ़िया होया इंतजार ना कि अल्लाह दे रसूल तू दस इन्ना माना मुनज़र, मेरा तो काम नहीं है भी जेड़े सुते पे उन ते जोड़ दिया तो जगा दिया कि नशा छड्डो, यहो जिहा खुदा नहीं लभना तुहानू जड़ा आखे जा जो कीता छड्ड दिता। नहीं, खुदा होना और ने फमन यामल मिस्काल दर्रतन खैरिया, राई बराबर कीता होगा तेनू नेक बदला मिलूगा।
فمن यामल मिस्काल दर्रतन शर्रन यरा राई बराबर गुनाह किया भुतलाई इस खुदा नु पुरा मुसलमान आलमा ने पुराता दर्स हो रहा है। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, उनका मतलब है कि सारा कोई करेगा। मैं कई बार आख्या भी उस खुदा नु पहचानना ना थोड़ी नजर मार लेंगे जेडा ही मां तो ज्यादा मेहरबान तुसी जितना दा समझा क्यों जल्दी आ रहा है लखा इंसान एकदम तबाह हो गए क्यों सुनामी आ रहा कि तूफान आया और जहान तबाह हो गया उससे खुदा की रहमत कितने गई मादला जालिम है उस वे भी रहमत कर रहा मगर उस रहमत के कई रंग है ये जरा तुसी समझना कहना ही कुछ नहीं ये रहमत होंगी देखिए बीमारियां क्यों आउंदियां किन्ने कैंसर ना खाया करन रहा किन्ने अस्पताल चीख रहा उस वे अल्लाह रहीम नहीं इस दुनिया की तो राजा नहीं पता लगा कि ये दुख देने जड़े कोई रहमत के खिलाफ रही। मौलाना इसहाक मदनी साहब की वीडियो भी आपने देख ली है। अब आखिर में चलते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो की तरफ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है। भी हो अगर कोई और उसके छोटे छोटे 4 बच्चे हो, क्या तुम अपने दुश्मन के लिए ख्वाहिश रखोगे कि उसकी बीवी छोटे छोटे 4 बच्चे छोड़ के मर जाए और उसके बच्चे सुतेली माँ के हाथों पिटते रहे, उनके मेंटल मॉडल्स तक बदल जाए? सारे कहेंगे नहीं नहीं जी, क्यों नहीं, दिल पसीजता है। अच्छा, आपका दिल पसीजता है और आपने मैं ये कहानी कराई है कि अल्लाह ताला माँ से इतने गुना और दादी से इतने गुना और नानी से इतने गुना मोहब्बत करता है, तो वो अल्लाह रोजाना हजारों ऐसी औरतों को मौत क्यों देता है जिनके 4 छोटे छोटे बच्चे होते हैं? इसमें सारों की जुबानें गुंग हो जाती हैं। अगर वो ऑल लविंग है क्यों मौत देता है? आप तो अपने दुश्मन की बीवी को भी मौत ना दें, वो रोजाना हजारों ऐसी माओं को मौत क्यों देता है जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं? इसका मतलब है आपने जो एहसास डेवलप किए हैं कि अल्लाह अपने बंदों के साथ ये करता है, वो नहीं है। जिससे कुरान नहीं पढ़ा ना वो तो यही समझता है कि शायद अल्लाह ताला को एक बूढ़ी नानी अम्मा है जिसने ये लोग पैदा किए हैं और एक शुगल मिला गेम है, एंड पे सारों को छोड़ देगा। जनाब अगर ये मामला होता तो अंबिया और किताब में आती। इमाम मोहम्मद गजाली ने किमिया सादत में लिखा है कि जो उलमा मिंबरों पे चढ़ के लोगों को ये बता रहे हैं ना कि अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, वो सबको बख्श देगा चाहे जिस तरह की मर्जी जिंदगी गुजारो, वो असल में ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला के पैगंबर झूठे थे, नाउज़ बिल्लाह, उनके साथ जो किताबें नाजिल हुई, ये इसमें जो वईदें आई हैं कि जो नाफरमान है उनको दोज़ख में झोंका जाएगा, ये सब का सब झूठ है और वो ये सही कह रहे हैं। फिर इमाम गजाली कहते हैं ऐसे उलमा वाजिबुल कत्ल है। मैं आज के किसी मीठे मीठे मुबल्लिग के ऊपर कत्ल का फतवा नहीं लगा रहा, इमाम गजाली कह रहे हैं कि जो इस किस्म की रहमत की आयात सुना सुना कर उनका गलत मफहूम बयान करके खुदा से दूर कर रहे हैं। ये तो यहूदियों का ये तो अकीदा था, सूरत बकरा में आता है ना, कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला चंद दिनों के लिए डालेगा दोज़ख में, फिर निकाल लेगा, हम तो अल्लाह के चहीते हैं। अल्लाह ताला माता तुमने कोई आयत लिया हुआ अल्लाह से? सूरह बकरा शुरू में इसीलिए है कि तुमसे एक पहले तुमसे ज्यादा लाडली उम्मत थी, इस हवाले से कि उसमें ज्यादा पैगंबर आए, 3 किताबें नाजिल हुई, तौरात ज़बूर इंजील। लेकिन जब उन्होंने हमसे रुगर्दानी की तो हमने देखो उसे दुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला वल मस्कना, उन पे ऐसी जिल्लत और मस्कनत आज तक तारी है। तो सर ये बातें करना थानेदार वाला मामला नहीं, कुरान का उसलूब भी बड़ा सख्त है। आप जरा कुरान तो पढ़ के देखें, क़यामत के दिन अल्लाह ने अपना नाम क्या रखा हुआ है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज के दिन किसकी बादशाहत है? उस अकेले क़हार की जो सब पे छाया हुआ है। सूरतुल मोमिन में आती है आयत, जिसे सूरह गाफिर भी कहते हैं। फिर सही बुखारी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चौराहे से गुजरे, कुछ असहाब जो हैं वो हंस रहे थे, आप रुक गए। आपने फरमाया जो कुछ मैं जानता हूं ना तुम जानते होते तो बहुत कम हंसते, ज्यादा रोते। तो नबी इस्लाम का तो मुबारक जिंदगी में तो बड़ी संजीदगी है। अगर कोई ये समझता है कि बगावत की जिंदगी गुजारे, अपनी मर्जी की जिंदगी, ना, दुनिया जो अल्लाह की मर्जी की गुजारेगा, आखिरत फिर वो उसकी मर्जी की होगी। लेकिन जो अपनी मर्जी की दुनिया गुजारेगा, आखिरत फिर अल्लाह की मर्जी की होगी, यानी दोज़ख में। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये इतना मामला आसान नहीं है। अल्लाह ताला सूरह हिज्र में फरमाता है, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। ए नबी इस्लाम, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बड़ा बख्शने वाला मेहरबान हूं। लेकिन फिर साथ ही फरमाया कि उनको ये भी बता दो कि मेरा अजाब वो भी हो सकता है। बैलेंस करो। बाकी ये ठीक है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मखलूकात की पैदाइश से पहले अपने पास अर्श पे इबारत लिख ली थी कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पे सबकत ले जाने वाली है। लेकिन किस मामले में? बागियों के लिए ना, उन लोगों के लिए जो पूरी एफर्ट पुट करें फिर भी उनसे मामला सीधे ना हो, अल्लाह की तरफ रुजू लाएं। कुरान में कहीं ये नहीं है कि डट के गुनाह करो, बागी बने रहो, मैं तौबा कबूल करूंगा। कुरान में हमेशा आया है कि आप गलती कर बैठो, अल्लाह की तरफ रुजू लाओ, उसके बाद अपनी इस्लाह करो, अल्लाह ताला को बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो आपने मुकम्मल देख ली होगी। तमाम मक्ता फ़िक़्ह के उलमाए किराम की वीडियो को आपके सामने पेश किया जाता है। इसका मकसद आपको मालूमात फराहम करना है और आपके इल्म में इजाफा करना है। इस वीडियो का मकसद किसी किस्म की फ़िरकावारियत या किसी किस्म की दिल आज़ारी नहीं। अब आखिर में आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें कि आपको किस आलम दीन की वीडियो ज़्यादा पसंद आई है और किसका मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूत लगा है। और अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम।